आज के दिन हमारे सारस्वत जो यहाँ पर पधारे हुए हैं, इनकी एक विशेष भूमिका रही है और वो है डॉक्टर कुणाल जोशी। गुजरात अहमदाबाद से पधारे हुए आदरणीय डॉक्टर कुणाल जोशी, वो चर्म चक्षु से प्रज्ञा चक्षु है, मगर अपने अंतरात्मा के दिव्य चक्षु से जिसने सारे शास्त्रों को अवगत कर लिया है, ऐसे एक कंठस्थ विद्वान जिनको सारी विद्या कंठस्थ है, जो अपनी आंखों से दुनिया को नहीं, दुनिया बनाने वाले को देखते रहते हैं, उसी को तो कहते हैं प्रज्ञा चक्षु। और उनकी दिव्य प्रज्ञा से वो परम तत्व को पाने का प्रयास करते हैं। बहुत छोटी उम्र में अप्रतिम जिसने शब्द साधना की है, संगीत के धनी है, ऐसे हमारी माँ के बड़े कृपा पात्र डॉक्टर कुणाल जोशी को मैं निमंत्रित करता हूँ। आज का उनका विषय है देवी भागवत में भुवनेश्वरी चरित्र। भगवती भुवन भास्करी भुवनेश्वरी ने जो 14 भुवन का निर्माण किया और उसके बाद जो जो रचनाएं की, उनका सुंदर विषय लेकर एक मनुष्य विद्वान आ रहे हैं और उनकी सरस्वती वाणी प्रवाह में हम मनोरमय स्नान करें। गजाननम भूतगणाधिसेवितं कपीठजाम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् हंसयुक्तविमानस्ते ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशाम्भक्ष डिके देवी नारायणी नमोस्तुते। बोलो आद्य शक्ति श्री अम्बे मात की जय। खोखरा हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर। સૌથી પ્રથમ તો હનુમાનજી મહારાજ એમના ચરણોમાં વંદન। પરમ વંદનીય સદગુરુ શ્રી કેશવાનંદજી બાપુની પ્રગટ ચેતનાને હું વંદન કરું છું। માતાજીના ચરણોમાં મારા વંદન પ્રણામ। અને વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના માધ્યમથી શ્રવણ કરી રહેલા સૌ આત્મીયજનોને મારા પ્રેમથી જય શ્રી કૃષ્ણ, જય ગિરનારી। તો પ્રતિવરસ જેવી રીતે સારસ્વત સમારંભમાં વિવિધ વિવિધ વિષયો પર પરમ પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં એમ કહેવાની ઈચ્છા થાય કે ઇત્યેષા વાંગ્મયી પૂજા, મહાદેવજીની વાંગ્મયી પૂજા સારસ્વતમાં વિવિધ વિવિધ શાસ્ત્રો દ્વારા થતી હોય ત્યારે મારે જે વિષય પર ચર્ચા કરવાની છે, શ્રીમદ દેવી ભાગવત અને શ્રીમદ દેવી ભાગવતમાં ભુવનેશ્વરી માતાજીનું મહિમા, ભુવનેશ્વરી માતાજીનું મહત્વ। તો દેવી ભાગવતના 6થા સ્કંધમાં ભુવનેશ્વરી શબ્દની વ્યાખ્યા કરી છે। દેવર્ષિ નારદજી અને બ્રહ્માજીના પ્રસંગમાં દેવર્ષિ નારદજીએ બ્રહ્માજીને પૂછ્યું કે હે પિતામહ, તમે માયાને જીતી છે? ત્યારે બ્રહ્માજી એમ કહે છે કે માયાને કોણ જીતી શકે? અને ત્યારે બ્રહ્માજી બોલ્યા છે
ભુવનમ ખલુ માયા સ્યાત ઈશ્વરી તસ્ય નાયિકા ભુવનેસી તત પ્રોક્ત દેવી ત્રૈલોક્ય સુંદરી. કેટલી સરસ વાત કરી કે ભુવનમ ખલુ માયા સ્યાત ઈશ્વરી તસ્ય નાયિકા. માયા જેમના ચરણોની દાસી છે, જે 14 ભુવનના ઈશ્વરી છે, એટલે માતાજીનું નામ ભુવનેશ્વરી છે. ભુવનેશી તતપ્રોક્ત દેવી ત્રૈલોક્ય સુંદરી. પણ મહા કોને કહેવાય? તો શાસ્ત્રની રીતે જોઈએ તો જે આપણને સંભાળે એ માં, જે આપણું પાલન પોષણ કરે એ માં, જે આપણો ઉછેર કરે એ માં, અને આ બધું કર્યા પછી જે કંઈ ન બોલે એ માં. અને એટલે જ આની આ વાત રામચરિતમાનસમાં પણ તુલસીદાસજી મહારાજે કરી છે. જ્યારે વંદના પ્રકરણમાં સીતા માતાજીની વંદના કરી, ઉદ્ભવ સ્થિતિ સંહાર કારિણી ક્લેશહારિણી સર્વશ્રેયસ કરીમ સીતામ નતોહમ રામ વલ્લભા. હે માં, તે મને જન્મ આપ્યો, તે મારું પાલન પોષણ કર્યું. હે માં, તે મારી અંદર રહેલી વિકૃતિઓનો નાશ કર્યો. તું સર્વશ્રેયસ કરી છે માં. તો માનો મહિમા તો શાસ્ત્રમાં આદિ અનાદિકાળથી છે. ભગવાન રામજી પણ પોતાના શ્રીમુખે એમ બોલ્યા છે કે હે લક્ષ્મણ, અતિ સ્વર્ણમયી લંકા નમે લક્ષ્મણ રોચતે જનની જન્મ ભૂમિશ્ચ સ્વર્ગાદપીય ગરીયસી. મને લંકામાં રુચિ નથી, પણ મને તો મારી જનની અને મારી જન્મભૂમિ એ સ્વર્ગ કરતા પણ વિશેષ સુખ આપવા વાળી છે. એટલે જનનીનું મહત્વ ભગવાને પણ ગાયું છે. ત્યારે દેવી ભાગવતના તૃતીય સ્કંધમાં જનમેજયે ભગવાન વેદવ્યાસજીને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. શું કહે છે કે ભગવન ભવતા પ્રોક્તમ યજ્ઞમંબાભિદમ મહત સાકા કથમ સમુત્પન્ના પુત્ર કસ્માચ કિમ ગુણ. જન્મેજય કહે છે કે જે અંબાનો મહિમા તમે વર્ણવાના છો એ અંબાનું પ્રાગટ્ય કેવી રીતે થયું. પહેલા તો મારે એમના પ્રાગટ્ય વિશે જાણવું છે. સાકા કથમ સમુત્પન્ના પુત્ર કસ્માચ કિમ ગુણ. તૃતીય સ્કંધ 1લો અધ્યાય અને 1લો શ્લોક, એના ગુણો કયા. અને પછી જન્મેજયનો એક પ્રશ્ન આગળ વધ્યો કે સૃષ્ટિનું સર્જન કોને કર્યું? સૃષ્ટિનો સર્જનહાર કોણ? કોઈ કહે છે બ્રહ્માજીએ સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું, કોઈ કહે છે સૂર્યનારાયણ ભગવાને સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું. કેટલાકનો એવો મત છે કે ગણેશજીએ સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું. તો મારા મનમાં સંશય છે. સંશયથી મારું મન હિલોળે ચડ્યું છે. આવો શબ્દ પ્રયોગ વાપર્યો. પણ વેદવ્યાસજીએ જે કથા કરી એ કથા પ્રસંગ તો બધાને યાદ છે, સ્મરણ છે. પણ મારી જે વાત કરવી છે કે 3 દેવો મણિદ્વીપ ધામમાં ગયા છે. બીજા કથા પ્રસંગમાં હું નહીં જાઉં, પણ મારે તો જે ભુવનેશ્વરી માતાજીનો મહિમા છે એ વર્ણવવો છે કે મણિદ્વીપ ધામમાં 3 દેવો ગયા છે અને એ સમયે 3 દેવો દેવી સ્વરૂપ થઈ ગયા છે. પણ મણિદ્વીપ ધામમાં કેવી રીતે ગયા? તો દેવી ભાગવતમાં શબ્દ આવ્યો છે વિમાનમ તમ મનોવેગમ. માતાજીએ દેવો માટે વિમાન મોકલ્યું છે. કારણ કે મધુકૈટભનો વધ કર્યા પછી જલ સિવાય કંઈ હોતું નહીં. અને એ સમયે આકાશવાણી થઈ કે સૃજ,
સર્જન કરો. તો ત્રણેય દેવો વિચારમાં પડ્યા કે અમે શેનું સર્જન કરીએ. અને એ સમયે માતાજી વિમાન લઈને આવ્યા. માતાજી એમ કહે છે કે તમે એમ માનો છો કે આ જગતમાં કંઈ ન હોવા છતાં તમે એમ માનો છો કે આ જગતમાં કંઈ નથી? અરે કંઈ ન હોવા છતાં પણ આ જગતમાં બધું છે. અને માતાજીએ બ્રહ્મલોક, વૈકુંઠલોક બધા લોકોના દર્શન કરાયા અને વિમાન વિચરણ કરતું કરતું મણિદ્વીપ ધામમાં આવ્યું છે. પણ મણિદ્વીપ ધામમાં જ્યાં વિમાને પ્રવેશ કર્યો, મણિના બેટમાં વિમાન ઉતર્યું, ત્રણેય દેવો અંદર પધાર્યા છે. અને ત્રણેય દેવો દેવી સ્વરૂપ થયા. બ્રહ્માજી એ બ્રહ્માણી માતાજી બન્યા, ભગવાન વિષ્ણુ એ વૈષ્ણવી શક્તિ બન્યા, મહાદેવજી એ રુદ્રાણી શક્તિ બન્યા છે. અને એ સમયે ભુવનેશ્વરી માતાજીએ માળા પહેરી છે. માતાજીનું સ્વરૂપ કેવું છે? રક્તમાલ્યાંબરધરા રક્ત પુષ્પૈષુ પૂજિતા સુરક્તા નયના કાંતા દંતચ્છદ બિરાજિતા. માતાજીએ લાલ રંગના વસ્ત્રો પહેર્યા છે, માળા પહેરી છે. અને માતાજીનું તેજ કેવું છે? તો કે વિદ્યુત કોટી સમપ્રભા, કરોડો વીજળીઓ જેવું તેજ છે. અને આની આ વાત અવિનાશભાઈ કેટલી સરસ લખી છે કે માવડીની કોટેમાં તારા મોતી જનની આંખોમાં પૂનમની જ્યોતિ ચડી રે પુકારી માતાજીની મોરે લોટ હું ક્યો કંકુ ખર્યું ને સૂરજ ઉગ્યો માડી તારું કંકુ ખર્યું ને સૂરજ ઉગ્યો. તો જનનીની આંખોમાં પૂનમની જ્યોતિ, વીજળીઓ સમાન પણ વીજળીઓથી પણ પ્રચંડ તેજ. એટલે માતાજીનો તાપ કોઈ જીરવી ન શકે. આ શ્લોક દ્વારા એ સમજાયું છે કે માતાજીનો વેગ સામાન્ય મનુષ્ય તો જીરવી જ કેવી રીતે શકે, કે જેનું તેજ જ વીજળીઓથી પ્રચંડ છે. માણસના શરીરમાં વીજળી પડે તો એ મૃત્યુ પામે, અને આ તો વીજળી કરતા પણ વિદ્યુત કોટી સમપ્રભા. તો આવું ભુવનેશ્વરી માતાજીનું સ્વરૂપ છે. અને વિષ્ણુ ભગવાને પછી દેવોને પરિચય આપ્યો કે હે દેવો, આ એ માં છે કે જ્યારે હું બાલ મુકુંદ બની અને વટપત્ર ઉપર સૂતો હતો ત્યારે આ જ માં આવી અને મને હલરડા ગાતી હતી. આ બધાની માં છે. અને એ સમયે ત્રણેય દેવો માતાજીની નજીક ગયા. તે સમયે માતાજીએ લીલા કરી. જગદંબાએ શું લીલા કરી? કે પોતાના જમણા પગના અંગૂઠાના નખમાં સમગ્ર દેવોને બ્રહ્માંડના દર્શન કરાયા. માતાજી સમગ્ર બ્રહ્માંડના દર્શન થયા. પછી તો એક એક દેવોએ, 3 દેવો હતા ને, તો માતાજીની સ્તુતિ કરી છે. એમાં સર્વોત્તમ સ્તુતિ જો કોઈ હોય તો એ વિષ્ણુ ભગવાનની અને મહાદેવજીની સ્તુતિ છે. વિષ્ણુ ભગવાન કહે છે કે નમો દેવ્યૈ પ્રકૃત્યૈ ચ વિધાત્રૈ સતતં નમઃ કલ્યાણ્યૈ કામદાયૈ ચ સિદ્ધ્યૈ
પુષ્ટ્यै નમો નમઃ સચ્ચિદાનંદરૂપિण्यै સંસારરણયે નમઃ પંચકૃત્ય વિધાત્રૈ તે ભુવનેશ્यै નમો નમઃ. ભુવનેશ્વરી માતાજીની સ્તુતિ કરતા વિષ્ણુ ભગવાન કહે છે, હે પ્રકૃતિ સ્વરૂપા, તમારો જય હો. તમે વિધાત્રી છો, તમે ભક્તજનોનું કલ્યાણ કરવા વાળા છો, એટલે તમારું નામ કલ્યાણી છે. અને હે માં, બ્રહ્માજી સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે તો એ સર્જનમાં પણ તમારી શક્તિ છે. ભગવાન વિષ્ણુ પાલન કરે છે તો પાલનમાં પણ તમારી શક્તિ છે. મહાદેવજી સંહારનું કાર્ય કરે છે તો એમાં પણ તમારી જ શક્તિ છે. એટલે સૃષ્ટિના પંચકૃત્યોને તમે કરવા વાળા છો. સર્જન, પાલન, વિસર્જન, તિરોભાવ અને અનુગ્રહ. તિરોભાવ કહેતા મોક્ષ અને અનુગ્રહ કહેતા કૃપા. અને વિષ્ણુ ભગવાને તો સ્તુતિમાં કહ્યું કે સર્વાધિષ્ઠાનદાયૈ ચ કૂટસ્થાયૈ નમો નમઃ. તમે કૂટસ્થ સ્વરૂપે બિરાજ્યા છો. આ જગતમાં કોઈ એવું વ્યક્તિ નથી કે કોઈ એવી વસ્તુ નથી કે જ્યાં તમે બિરાજતા ન હો. અને આનો આ ભાવ વિશ્વંભરી સ્તુતિમાં કેટલો સુંદર આપ્યો છે કે ખાલી ન કોઈ સ્થળ છે વિણયા પધારો, બ્રહ્માંડમાં અણુ અણુ મહી વાસ તારો, શક્તિ ન માપ ગણવા અગણિત માપો, મામ પાયો ભગવતી ભવ દુઃખ કાપો. પણ જ્યારે વિષ્ણુ ભગવાને ભુવનેશ્વરી માતાજીની સ્તુતિ કરી ત્યારે એમને માતાજી પાસે શું માંગ્યું? જે વિષ્ણુ ભગવાને માંગ્યું એ આપણે માંગીએ. વિષ્ણુ ભગવાને કહ્યું કે હે માં, તમે જો મારા ઉપર પ્રસન્ન થયા હો તો તમારું સ્વરૂપ એ મારા હૃદયમાં રહે અને તમારું નામ એ મારા મુખમાં રહે. આટલી કૃપા કરજો. આપણે મંદિરમાં દર્શન કરવા જઈએ, ચાહે આપણે અંબાજી જઈએ કે કોઈ પણ શક્તિના પીઠોમાં જઈએ, તો માતાજીને એક જ પ્રાર્થના કરીએ કે હે માં, એક સ્વરૂપે ભલે તમે મંદિરમાં રહો, પણ બીજા સ્વરૂપે તમે મારા હૃદય મંદિરમાં બિરાજો. તમે મારી જોડે આવો. આમ તો તમે છો જ, પણ મને અનુભવ થાય, મને દેખાય. અને બ્રહ્મ કે ભગવતી એ અનુભવનો વિષય છે, એને મહેસૂસ કરાય. જે હું બોલું છું, આપણે બધા સાંભળીએ છીએ, એ શક્તિ જ છે. જો શક્તિ ન હોય તો બોલવા વાળો બોલી ન શકે અને સાંભળવા વાળો સાંભળી ન શકે. એટલે અનુભવનો વિષય છે. એટલે શક્તિ તત્વને જાણવું, આપણે કહીએ ને કે માણવું અને જાણવું, તો જાણવું એ જ્ઞાન છે અને એને માણવું એનું નામ ભક્તિ છે. જ્ઞાન અને ભક્તિનો આટલો સમન્વય છે. અને પછી વિષ્ણુ ભગવાને જ્ઞાન જ માંગ્યું છે પોતાની સ્તુતિના અંતમાં. તૃતીય સ્કંધના 4થા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક કે નમો દેવી મહાવિદ્યે નમામિ ચરણૌ તવ સદા જ્ઞાન પ્રકાશમ મે દેહી સર્વાર્થ દેશ. હું સર્વ અર્થોને જાણું. અને પછી ભુવનેશ્વરી માતાજીની સ્તુતિ મહાદેવજીએ કરી છે. શિવ ઉવાચ યદિ હરિસ્તવ દેવી વિભાવજ તમનુ પદ્મજયેવ તમુદ્ભવ કિમપી યત્ર તવાપી ન સદ્ગુણં સકલલોકવિધૌ ચતુરા શિવે ત્વમસि ભૂત્સલિલં પવનस्तथा કમપી વાણી મનો ગુણપેત જનની તાની પુનાની કરણાની ત્વમસि બુદ્ધિ
ધીમનો વ્યથલંકૃતૈર. તો મહાદેવજી શું કહે છે? યદિ હરિસ્તવ દેવી વિભાવજ. જો હરિ તમારાથી ઉત્પન્ન થયા હોય, પદ્મજ કેતા બ્રહ્માજી જો તમારાથી ઉત્પન્ન થયા હોય, તો હું તમારાથી જ ઉત્પન્ન થયો છું. એટલે આ શ્લોક દ્વારા એક વસ્તુ સ્પષ્ટ છે કે શક્તિ તત્વ આ જગતમાં નિત્ય છે. મહાદેવજી અજન્મા છે, પણ જે જેનું શાસ્ત્ર એનો મહિમા, શક્તિનું શાસ્ત્ર છે તો શક્તિનો મહિમા છે. પણ મહાદેવજીએ માતાજીના સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું કે માતાજી કયા કયા સ્વરૂપે છે, તો કે છે ત્વમસી ભૂ. જે પૃથ્વી ઉપર આપણે બેઠા છીએ એ પૃથ્વી માતાજીનું સ્વરૂપ છે. સલિલમ એટલે જળ વિના આપણને સૌને ચાલવાનું નથી, કારણ કે જળ એ જીવન છે. પવનસ્તથા, પવન એ માતાજીનું સ્વરૂપ છે. આવા વિવિધ સ્વરૂપોનું વર્ણન કર્યું અને પછી મહાદેવજીએ માતાજીની પાસે માંગ્યું, ભુવનેશ્વરી માતાજી પાસે શું માંગ્યું? તો કહે છે કે હે માં, તમે જો મારા ઉપર પ્રસન્ન થયા હો તો એટલી કૃપા કરજો કે જનની દેહી પદાંબુજ સેવન. જો વિષ્ણુ ભગવાને માંગ્યું કે તમારું સ્વરૂપ મારા હૃદયમાં રહે. એટલે એકવાર માતાજીનું સ્વરૂપ હૃદયમાં આવે, જે દર્શન કર્યા હોય, જે ઝાંખી જોઈ હોય એ હૃદયમાં આવે, એનું નામ 24 કલાક મુખમાં હોય તો પછી સેવા કરવાની ભાવના જાગે. એટલે મહાદેવજીએ માંગ્યું જનની દેહી પદાંબુજ સેવન. મારે બીજું કઈ નથી જોઈતું, મને તમારા ચરણોની સેવા આપો. અને એટલે જ તો કીધું ને કે મેવા મળે કે ના મળે, મારે સેવા તમારી કરવી છે. મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. એ પછી મહાદેવજીએ સ્તુતિ કરતા કરતા કહ્યું કે પ્રથમ જન્મની ચાધિ ગતો ભયા તદનુ ભાતિ નવાક્ષર એવહી. ગત સૃષ્ટિમાં તમે મને નવાર્ણ મંત્રની દીક્ષા આપી હતી. હે ભગવતી, તમે અમને નવાર્ણ મંત્ર આપ્યો હતો, પણ અત્યારે એ મંત્રની વિસ્મૃતિ થઈ ગઈ છે, માટે તમે અમારા ગુરુ બનો અને અમને મંત્ર દીક્ષા આપો. આનો આ નિર્દેશ બ્રહ્માજીએ પણ કર્યો. અને પછી માતાજીએ પોતાના મુખમાંથી નવાર્ણ મંત્ર પ્રગટ કર્યો. ઓમ ઐમ રીમ ક્લીમ ચામુંડાય વિજય. નવાર્ણ મંત્રનો તો કેટલો મહિમા છે. કુંજિકા સ્તોત્રમાં તો એમ કીધું કે ઐમકારી સૃષ્ટિ રૂપાય, રીમકારી પ્રતિપાદિતા, ક્લીમકારી કામરૂપિણ્યે બીજરૂપી નમોસ્તુતે. ઐમ એ સારસ્વત બીજ છે, જેના અધિષ્ઠાત્રી સરસ્વતી માતાજી છે. રીમ એ માયા બીજ છે, જેના અધિષ્ઠાત્રી મહાલક્ષ્મી માતાજી છે. ક્લીમ એ કામરાજ બીજ છે, જેના અધિષ્ઠાતા એ મહાકાલી માતાજી છે. અને ચામુંડા એનો બહુ સરસ અર્થ કર્યો છે કે હે માં વિચ્ચય, હું તમારે શરણે આવ્યો છું. વિદ જ્ઞાનેન, હે માં તમે મારા પર કૃપા કરો અને મને જ્ઞાન આપો. તો આ નવાર્ણ મંત્રની દીક્ષા માતાજી આપી. એ પછી માતાજીએ દેવોને ઉપદેશ આપ્યો છે. દેવી ભાગવતમાં ત્રણેય દેવોને 3 શક્તિ માતાજી આપી છે. કહ્યું કે બ્રહ્માજી, હું તમને જે શક્તિ આપું છું, તમને સર્જનમાં એ ખૂબ સંયોગ કરશે. વિષ્ણુ ભગવાનને જે શક્તિ આપ્યા એ પાલનમાં સંયોગ કરશે મહાલક્ષ્મી માતાજી, મહાસરસ્વતી મહાલક્ષ્મી માતાજી. અને મહાદેવજીને જે શક્તિ આપ્યા એ રુદ્રાણી કહેતા મહાકાલી.
એ સંહારનું કાર્ય એમાં સંયોગ કરશે. પણ માતાજીએ કહ્યું કે મેં તમને શક્તિ આપી છે, જે દિવસે તમે શક્તિનું અપમાન કરશો એ દિવસે શક્તિ તમને છોડીને ચાલ્યા જશે. શક્તિ વિના તમે અશક્ત થઈ જશો. આ માતાજી દેવોને જ નથી કહેતા, આપણને સૌને કહે છે, પુરુષોને પણ કહે છે કે યત્ર નાર્યસ્તુ પૂજ્યંતે રમંતે તત્ર દેવતા. જે ઘરમાં નારીની પૂજા થાય ત્યાં દેવોનો નિવાસ હોય છે. પૂજા એટલે કંકુ ચોખા લઈ અને પૂજન કરવું એવો માતાજી નિર્દેશ નથી કરતા, એ તો આપણે કરીએ છીએ, પણ સન્માન, એના મૂલ્યોનું સન્માન, એ વાત અહીંયા કરી છે. તો આવો નિર્દેશ કંઈક માતાજી ભુવનેશ્વરી માતાજી કરે છે. અને પછી માતાજી એક બહુ સરસ વાત કરી કે તમે ત્રણેય દેવો એક જ છો. યો હરિ સ શિવ સાક્ષાત, ય શિવ સ હરિ સ્વયં, યે દ્વયો ભેદમાતિષ્ઠ ભવેયુ નરકાગતિ. શિવ અને રામ એક છે, શિવ અને કૃષ્ણ એક છે. અને આની આ વાત તુલસીદાસજી મહારાજે રામચરિત માનસમાં કેટલી સુંદર લંકા કાંડમાં કરી છે. ભગવાન રામજી કહે છે કે લિંગ થાપી વિધિ વત કરી પૂજા, શિવ સમાન પ્રિય મોહિન દૂજા. શિવ દ્રોહી મમ ભગત કહાવા, સ્વપ્ને મોર દર્શ નહીં પાવા. જે મને માનશે અને શિવજીનો દ્રોહ કરશે એને સ્વપ્નમાં પણ દર્શન નહીં થાય. અને આની આ વાત ભગવતી કરે છે કે ભવેયુ નરકાગતિ. અને લંકાકાંડનો દુહો અને દેવી ભાગવતનો આ શ્લોક કેટલો સુંદર સમન્વય છે. શંકર પ્રિય મમ દ્રોહી, શિવ દ્રોહી મમ દાસ, તે નરક રહી કલ્પમહી, ઘોર નરક નિવાસ. યો હરીશ શિવ સાક્ષાત, યો શિવ સ હરિ સ્વયં, યે દ્વયો ભેદમાતિષ્ઠ ભવેયુ નરકાગતિ. તો આવો સુંદર સંદેશ ભુવનેશ્વરી માતાજીએ દેવોને આપ્યો છે. એ સંદેશ પ્રાપ્ત કર્યા પછી 100 વર્ષ દેવો મણિદ્વીપ ધામમાં રહ્યા છે. પછી ત્રણેય દેવો મણિદ્વીપ ધામમાંથી બહાર આવ્યા છે. પણ સમગ્ર પ્રસંગનો જો સાર આપણે જોઈએ તો એક જ છે કે શક્તિ પહેલા નિર્ગુણા હતા. શક્તિનું સ્વરૂપ કેવું છે? નિર્ગુણ. પણ એમાં ભક્તજનો માટે થઈને સગુણ થયા છે. સૃષ્ટવ્યા સર્ગ રૂપા. સર્જન સમય માં બ્રહ્માણી થયા, પાલન સમય નારાયણી થયા, સંહાર સમય રુદ્રાણી થયા. મૂળ શક્તિ તત્વ એક જ છે. શક્તિનું સ્વરૂપ નિર્ગુણ છે, નિર્ગુણા છે. એટલે તો નારદજીએ બ્રહ્માજીને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તમે નિર્ગુણા શક્તિને ક્યારે જોયેલા છે? ત્યારે નારદજી કહે છે, બ્રહ્માજી કહે છે, બેટા વત્સ, નિર્ગુણ જે શક્તિ છે એ જોવાનો વિષય નથી, અનુભવનો વિષય છે. એ ક્યાંથી દેખાય? કારણ કે તુલસીદાસજી મહારાજ પણ કહે છે રામચરિત માનસમાં કે બીનું પદ ચલય. પગ નથી તે છતાંય જે ચાલે છે, કાન નથી તે છતાંય જે સાંભળે છે, હાથ નથી તે છતાંય કર્મ કરે છે, એ શક્તિ છે. પણ એ માતાજી ભક્તજનો માટે થઈ અને સગુણ થયા. તો આ એ ભુવનેશ્વરી માતાજી છે કે જેમને ત્રણેય દેવોને જ્ઞાનોપદેશ આપ્યો, ત્રણેય દેવોના ભગવતી ગુરુ બન્યા. અને એ માનો મહિમા શ્રીમદ દેવી ભાગવતમાં વર્ણવેલો છે. 18 પુરાણોમાં દેવી ભાગવતનો જે ક્રમ છે એ 5મો છે. અને એ દેવી ભાગવત
પરીક્ષિત મહારાજના મોક્ષ માટે જન્મેજય મહારાજે સાંભળ્યું છે. એટલે માતાજી ભૌતિક જગતનું સુખ આપનારા છે અને મોક્ષ પણ આપનારા છે. તો એવું ચરિત્ર માતાજીનું વર્ણવવાનો એક પ્રયત્ન કર્યો છે. શ્રાવણ મહિનામાં મહાદેવજીની વાંગમય પૂજા કરવાનો એક પ્રયત્ન કર્યો. બાકી તો માતાજીના ગુણો અનંત છે. તેરસ તુળજા રૂપ તમે તારુણી માતા, બ્રહ્મા વિષ્ણુ સદાશિવ ગુણ તારા ગાતા. કેવી રીતે વર્ણવી શકાય શક્તિના સ્વરૂપનો મહિમા? પણ આ તો મારી વાણીને પવિત્ર કરવા માટે. હું કોઈ કવિ નથી કે હું કોઈ વિદ્વાન નથી, પણ હું જે કંઈ બોલું છું એ માની પ્રસાદી છે. જ્યારે બોલવા બેસું ત્યારે હું પ્રાર્થના કરું કે સુરા સુરા સેવિત પાદ પંકજા કરે વિરાજત કમનીય પુસ્તકા, વિદેશ પત્ની કમલાસન પ્રિયા, સરસ્વતી નૃત્ય તુ વાચિને સદા. હે માં સરસ્વતી, તમે મારી વાણીમાં નૃત્ય કરજો, મારી વાણીમાં બિરાજજો. અને પછી હું જે બોલું એ વાણી એ મારી વાણી નથી, પણ એ માની પ્રસાદી છે. તો માની પ્રસાદી પહોંચાડવાનો આ એક પ્રયાસ કર્યો છે. જે મને અહીંયા તક આપી એ બદલ પૂજ્ય મહા અને સૌ વિદ્વાનોના ચરણોમાં વંદન કરી અને મારી વાણીરૂપી જે પુષ્પ છે એ માતાજીના ચરણ કમલોમાં સમર્પિત કરી અને વિરામ પામું છું. બોલો શ્રી ભુવનેશ્વરી માત કી જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતये હર હર મહાદેવ. हमारे भारतवर्ष में भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति से विभूषित कई संप्रदाय हैं, जिनमें ठाकुर जी की लालना पालना श्रृंगार अर्चन नित्य होते रहते हैं. ऐसी संप्रदायों में एक अनूठी संप्रदाय है स्वामीनारायण संप्रदाय. भगवान सर्वावतारी श्री जी महाराज सहजानंद स्वामी द्वारा प्रस्थापित ये संप्रदाय भारतवर्ष में ज्ञान भक्ति और वैराग्य का उत्तम प्रचार प्रसार करती रहती है. यही स्वामीनारायण संप्रदाय के एक दीक्षित और शिक्षित संत आदरणीय श्री कृष्ण प्रकाश स्वामी जी, आप समर्थ गुरु के शिष्य हैं. आपके द्वारा जामनगर में बहुत बड़ा गुरुकुल की स्थापना हुई है, जहां पर विद्यार्थी संस्कार के साथ शिक्षा का अध्ययन करते हैं. कई मंदिरों का निर्माण करके आपने हमारी धर्म संस्कारों का परिवहन किया है. जस्ट अभी अभी जामनगर में 100 बेड की हॉस्पिटल बनवाकर ये कोविड-19 का सेंटर बनवाकर गुजरात गवर्नमेंट को आपने सादर समर्पित किया है. हर क्षेत्र में आपका सेवा प्रदान रहा है. आप श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस और कई ग्रंथों के, स्वामीनारायण संप्रदाय के सभी मननीय ग्रंथों के अभ्यासी प्रवक्ता हैं. और हमारी सारस्वत परंपरा से आप पहले से ही 12 साल से सतत जुड़े हुए हैं. बड़े सरल सुहृद और सात्विक चित्त संत हैं. हम कथाकारों से उनकी बहुत बनती रहती है. आज के सारस्वत में श्री कृष्ण प्रकाश स्वामी, जिनको हम प्यार से केपी स्वामी कहकर बुलाते हैं, वो महाभारत में विदुर नीति का विषय लेकर अपना ज्ञान प्रदान करने के लिए पधारे. श्री विदुर जी महाराज प्रसिद्ध है, भक्ति मार्गीय संत हैं, किंतु नीति निपुण संत हैं. ऐसा लगता है कि रामचरितमानस में श्री विभीषण जी महाराज और महाभारत में श्री विदुर जी दोनों के चरित्र में काफी साम्य है. दोनों अपने बड़े भाई को हमेशा नीति का ज्ञान देते थे. विदुर जी का बड़ा भाई अंध था तो विभीषण जी का बड़ा भाई मदांध था. दोनों भक्ति मार्ग के संत हैं, दोनों भगवदाश्रयी है. दोनों को राज्य सत्ता छोड़नी पड़ी. आज भी आश्रय और शरणागति के प्रसिद्ध संत है तो रामायण में विभीषण जी और महाभारत में श्री महात्मा विदुर जी महाराज. ऐसे नीतिकार महात्मा विदुर जी का सुंदर चरित्र और उनकी नीतियों का आधार लेकर हमारे पास पूज्य कृष्ण प्रकाश स्वामी केपी स्वामी को मैं सादर निमंत्रित करता हूँ. जय गिरनारी. जय स्वामीनारायण, जय द्वारिकाधीश, जय गिरनारी. प्राय सभी भगवत प्रेमी भक्त यह चाहते हैं कि अपने सुहृद परम दयालु भगवान में उनकी भक्ति अविचल हो, कभी विचलित न हो पाए, सदा सर्वदा अड़ग
अचल, अविच्छिन्न, अव्यभिचारिणी, अभंग, अखंड एवं नित्य निरंतर दृढ़ से दृढ़तर होती जाए। यह भक्ति की परम अवस्था प्राप्त करने का सरल एवं सुगम साधन हमारे यहाँ शास्त्र में एकमात्र बताया गया है, और वह साधन है भगवान और भगवान के भक्तों के दिव्य चरित्रों का श्रवण करना। आज सारस्वत सत्र के माध्यम से विदुर जी की भक्ति और नीति इस विषय के द्वारा हम सब एकत्रित हुए हैं। श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में 3 मार्ग बताए हैं। पहला मार्ग है ज्ञान मार्ग, दूसरा है कर्म मार्ग और तीसरा है भक्ति मार्ग। जिसमें ज्ञान मार्ग, उस मार्ग पर चलते चलते कहीं ना कहीं अहम के आने की संभावना रहती है। अहम माने अज्ञान, अहम माने अहंकार के आने की संभावनाएं रहती है। जो साधक ज्ञान मार्ग के माध्यम से ऊर्ध्व गति को प्राप्त कर चुका है, उसमें अहम आने से कहीं ना कहीं वो नीचे गिर सकता है। ये ज्ञान मार्ग की संभावना है। दूसरा मार्ग है कर्म मार्ग। तो कर्म मार्ग को हमारे यहाँ राजसी मार्ग कहा गया है, और कर्म मार्ग के साथ पहले से ही अहंकार, अहम वो जुड़ा हुआ है, चला आ रहा है। इसलिए इसमें भी कहीं ना कहीं नीचे गिरने की संभावना है। और भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में जो तीसरा मार्ग बता रहे हैं, वह मार्ग है भक्ति मार्ग। इस मार्ग में अहम को कोई स्थान नहीं है। यह मार्ग भक्ति का मार्ग है। यहाँ पर केवल और केवल दास को स्थान है। मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का सेवक हूं। यह मार्ग परमेश्वर को अति प्रिय मार्ग है। और इस मार्ग में आगे चलकर यदि हमारे भीतर विशेष रूप से प्रेम यदि जागरूक हो जाए, तो यही मार्ग वो निष्काम भक्ति योग बन जाता है। यही मार्ग प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप धारण कर लेता है। यह निष्काम मार्ग, यह निष्काम भक्ति, यह प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ मार्ग हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है। निष्काम भक्ति योग भगवान को अति प्रिय है। इसका प्रमाण यह है कि हमारे यहाँ जब विद्वज्जन यज्ञ में आहुति देते हैं, उस समय देवताओं के प्रति हमारे विद्वान विप्रवृंद बोलते हैं, इदम अग्नये इदम न मम, इदम इंद्राय इदम न मम, इदम आदित्याय इदम न मम। इसका तात्पर्य यह है, यह मंत्र हमें सिखाते हैं कि जो कुछ है वो सब कुछ आपका है, मेरा कुछ नहीं है। इसलिए आपका है और आप ही को मैं यह प्रदान करता हूं। यह निष्काम भावना इस मंत्र के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। और इसीलिए भक्त की निष्काम जो भक्ति है, जब वो चरम सीमा को पार हो जाती है, अर्थात जब निष्काम भक्ति योग का फल परिपक्व हो जाता है, और यही परिपक्व फल जिसे हमारे यहाँ शास्त्रों में स्थित प्रज्ञ कहा गया है, और यह स्थित प्रज्ञ की स्थिति भगवत प्राप्ति के लिए अति सरल हो जाती है। जैसे भगवान अपने भक्त को सहज में स्वीकार कर लेते हैं, और इसीलिए कहा गया कि भगवान ऐसे भक्त को सामने चलकर गले लगाने आते हैं। वो चाहे भक्त कैसा भी क्यों ना हो,
किसी भी कुल में क्यों न जन्म उसका हुआ हो, मगर जिसमें निष्काम भक्ति योग हो, जो स्थित प्रज्ञ हो चुका हो, जिसकी प्रेमा भक्ति भीतर से जागरूक हो चुकी हो, ऐसे भक्त को भगवान सामने चलकर गले लगाते हैं। और आज ऐसे ही एक भक्त के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसे निष्काम भक्ति योग जिसने सिद्ध किया है, जो स्थित प्रज्ञ की तरह निरंतर अपना कर्तव्य निभाते रहे, ऐसे भक्त महात्मा विदुर जी के विषय में आज हमें चर्चा करनी है। महात्मा विदुर जी, उनके जीवन में भक्ति का स्थान, उनकी नीति, उससे वह प्रसिद्ध है। महात्मा विदुर जी का संबंध हरि और हस्तिनापुर के साथ रहा है। हरि के साथ जो भगवान हरि के साथ जो संबंध है, वह संबंध निष्काम संबंध है। हरि के साथ जो संबंध है, हरि का संबंध वो नित्य संबंध है, और हस्तिनापुर का जो संबंध है वो अनित्य संबंध है। हरि के साथ का जो संबंध है वो आध्यात्मिक संबंध है, और हस्तिनापुर के साथ का जो संबंध है वो व्यावहारिक संबंध है। फिर भी विदुर जी हस्तिनापुर के साथ जुड़े रहे। हस्तिनापुर में आने वाली कोई भी विपत्ति हो, उस विपत्ति में विदुर जी चलित नहीं हुए हैं। विदुर जी ने अपनी भक्ति का त्याग नहीं किया। विदुर जी ने अपने नीति विषयक वाक बाण से जरूरत पड़ने पर धृतराष्ट्र जैसे मोह पास में बंधे हुए राजा को भी मुक्त करने का संघर्ष किया, एक प्रयास किया, और अंतोगत्वा अपने नीति विषयक शब्द बाण से विदुर जी को एक सफलता मिली कि धृतराष्ट्र के मोह को वो दूर कर सके। हस्तिनापुर में जब कलह का वातावरण रहा, उस समय भी विदुर जी ने अपने मन को विचलित न होते हुए भगवान द्वारिकाधीश में अपने मन को लगाए रखा। महात्मा विदुर जी ज्ञानी है, नीतिज्ञ है, फिर भी अपने जीवन में लेश मात्र अहंकार को स्थान नहीं दिया है। उसके जीवन में दैन्यता, दासत्व और प्रभु भक्ति विशेष रूप से हमें दिखाई देती, और इसीलिए भगवान द्वारिकाधीश के हृदय में विदुर जी का विशेष रूप से स्थान है। इसका प्रमाण यह है कि जब भगवान द्वारिकाधीश ने इस लोक को छोड़ने का संकल्प किया और उद्धव जी को जब परम भागवत धर्म का उपदेश दे रहे हैं, उस समय भी विदुर जी को याद किया है। यह बात हमें यह सिखाती है कि विदुर जी भगवान द्वारिकाधीश के कितने निकट है, कि भगवान द्वारिकाधीश ने महाप्रयाण के समय भी विदुर जी को याद किया है। इसका मतलब यह है कि विदुर जी भगवान द्वारिकाधीश के हृदय में स्थान प्राप्त कर चुके थे। शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक मनुष्य अहंता और अहंकार से मुक्त नहीं होता, तब तक वो प्रभु भक्ति को संपादित नहीं कर सकता। और यहाँ पर विदुर जी ने अपने भीतर रहे हुए अहंकार को बिल्कुल नष्ट कर दिया है। विदुर जी के भीतर न अहंकार है, न उनके भीतर किसी भी प्रकार की अहंता है, न अहंकार है। विदुर जी, उनकी निष्काम जो भक्ति है वो सदैव वंदनीय है। सर्वथा उन्होंने अपने जीवन में निष्काम भक्ति योग को स्थान दिया, और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया, जब साधक के भीतर भक्ति मार्ग में चलते चलते प्रेमा भक्ति उसके हृदय में प्रकट हो जाती है, तो प्रभु दर्शन की लालसा उनकी बढ़ जाती है। और जब भक्त के भीतर तीव्र भक्ति योग जागृत होता है,
तब ऐसे भक्त को गले लगाने के लिए स्वयं भगवान सामने चलकर आते हैं। और वैसा ही कुछ विदुर जी के जीवन में हमें प्राप्त होता है कि विदुर जी के भक्ति का जो परिपक्व फल है उसकी प्राप्ति होने जा रही है। उसका प्रमाण महाभारत में मिलता है। महाभारत में उद्योग पर्व में कथा मिलती है, जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर में आते हैं, उस समय भगवान श्री कृष्ण का भगवान द्वारिकाधीश का भव्य स्वागत हुआ। पितामह भीष्म द्रोणाचार्य जी उनके माध्यम से भी स्वागत हुआ। अंतोगत्वा जब विश्राम करने की बात आई, भोजन करने की बात आई, तब भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि मैं विश्राम और भोजन वो तो केवल और केवल विदुर जी के यहाँ प्राप्त करूंगा, वही मैं विश्राम करूंगा, वही मैं भोजन ग्रहण करूंगा। भगवान द्वारिकाधीश विदुर जी के मंदिर में पधारते हैं। उस समय दुर्योधन के कहने पर पितामह भीष्म द्रोणाचार्य जी, शकुनी जी, कृपाचार्य जी, उन्होंने भगवान द्वारिकाधीश से पूछा है कि आपने हस्तिनापुर के राजमहल का जो आतिथ्य सत्कार है उनका त्याग क्यों कर दिया? आपने सविशेष रूप से बनाए गए अनेक प्रकार के व्यंजनों का त्याग क्यों कर दिया? तब भगवान द्वारिकाधीश ने हंसते हुए सुंदर उत्तर दिया है। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं, शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि किसी के घर यदि भोजन प्राप्त करना हो तो उसमें प्रेम होना चाहिए, या फिर हमारे जीवन में कोई विपत्ति होनी चाहिए, तब जाकर किसी के घर भोजन करें। तो यहां पर तो न दुर्योधन आदि में प्रेम है और न मेरे जीवन में कोई विपत्ति है, इसलिए भोजन प्राप्त करने का कोई अवकाश मुझे दिख नहीं रहा है। आगे चलकर कहते हैं कि महात्मा विदुर कि यहां मैं भोजन इसलिए प्राप्त करने वाला हूं कि हे दुर्योधन, तुम्हारा जो अन्न है वह अन्न दुर्भावनाओं से दूषित है, अतः मेरे भोजन करने के वह योग्य नहीं है। यहां केवल और केवल विदुर जी का ही अन्न ग्रहण करने योग्य है। भगवान श्री कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश स्वयं महात्मा विदुर जी की इस प्रकार प्रशंसा करते हैं। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं कि विदुर जी का मन निरंतर मुझ में लगा हुआ है, प्रभु भक्ति में लगा हुआ है, और इसीलिए विदुर जी की झोपड़ी, विदुर जी का घर वो घर नहीं है, झोपड़ी वो झोपड़ी नहीं है, वो मेरे लिए तो मंदिर है, परम पवित्र तीर्थ भूमि है। विदुर जी वो राजाओं के भी राजा है और उसकी आत्मा प्रेम भक्ति के रस में निरंतर डूबी रहती है, और इसीलिए मैं तो प्रेम के अधीन हूं, मेरे भक्त के अधीन हूं। और विदुर जी की श्रद्धा और विदुर जी की प्रीति, विदुर जी का प्यार, विदुर जी की भक्ति, वह मुझे उसकी ओर खींची जा रही है, और इसीलिए मैं विदुर जी के घर आया हूं। और रही बात आपके यहाँ बने हुए अनेक व्यंजनों की, तो भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं कि मैं संसार के किसी भी वस्तु पदार्थ से प्रसन्न नहीं होता हूं, मैं किसी भी भोग्य पदार्थों से प्रसन्न नहीं होता हूं, मैं भाव से प्रसन्न होता हूं। इसलिए भगवान द्वारिकाधीश का जो एक नाम है भावग्राही जनार्दन, वह नाम को आज भगवान द्वारिकाधीश ने सार्थक किया। भगवान द्वारिकाधीश भावग्राही जनार्दन, वह नाम तो सार्थक किया ही, मगर भगवान द्वारिकाधीश को भक्ति भी प्रिय है, वह नाम भी सार्थक किया, भक्ति प्रियो माधव। इन नामों को भगवान द्वारिकाधीश ने विदुर जी के प्रेम के माध्यम से सार्थक किया। भगवान के प्रति भक्त का जो प्रेम है, भगवान के प्रति भक्त का जो आकर्षण है, वो तो समझने वाली बात है कि भक्त का आकर्षण भगवान की ओर हो सकता है, मगर
यहाँ पर हस्तिनापुर में जो घटना घटी है वहां पर भगवान का आकर्षण भक्त की ओर है। यह सबसे सर्वोत्तम बात है, श्रेष्ठ बात है कि विदुर जी की ओर भगवान का आकर्षण। रामचरितमानस में स्वयं रामचंद्र जी भगवान भरत जी को याद कर रहे हैं। यह भरत जी की सर्वोत्तम श्रेष्ठ भक्ति का उदाहरण है। और उसी प्रकार यहाँ पर भगवान द्वारिकाधीश विदुर जी की ओर आकर्षित होकर जा रहे हैं। यह विदुर जी की श्रेष्ठ भक्ति का प्रमाण है। विदुर जी वह भगवान श्रीहरि के प्रति अनन्य ममता और द्रवीभूत हृदय वाले श्रेष्ठ भक्त है। विदुर जी का हृदय निरंतर द्रवीभूत रहता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया, काठिन्यम विषये कुर्यात् द्रवत्वम भगवत पदे। संसार के सभी विषयों का त्याग करके केवल और केवल भक्त का हृदय भगवत प्राप्ति के लिए द्रवीभूत होता रहे, ऐसे भक्त को श्रेष्ठ भक्त कहा गया है। भगवान के भक्त निरंतर भगवत दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। भगवान के भक्त की आंख यदि भगवान के दर्शन न कर ले तो उसकी आंखों में से अश्रुधारा बहने लगती है। वही स्थिति विदुर जी की है। निरंतर वो भगवत दर्शन के लिए आतुर रहते हैं और उनका हृदय भी प्रभु दर्शन के लिए उन्मादित होता रहता है, छलकता रहता है। और हमारे यहाँ शास्त्रों में यही कहा गया है कि ज्ञान की प्राप्ति से हमारे हृदय की शुद्धि नहीं होती, निष्काम भक्ति योग से हमारे हृदय की शुद्धि होती है। और यही निष्काम भक्ति योग विदुर जी के जीवन में हमें दर्शन होता है। विदुर जी के जीवन में एक और बात देखने लायक है, दर्शन करने योग है। वह बात है तन मन बुद्धि सब कुछ भगवान द्वारिकाधीश को अर्पित कर दिया है। कहा जाता है, विदुर जी कहते रहे, मेरा जीवन श्री कृष्ण का जीवन, मेरी इच्छा श्री कृष्ण की इच्छा, मेरा हृदय श्री कृष्ण का हृदय, मेरी बुद्धि भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि और मैं भी भगवान श्री कृष्ण का। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है, डूबने का खौफ हमको हो तो फिर क्या खाक हो, हम तेरे कश्ती तेरी साहिल तेरा दरिया भी तेरा। यह सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है। और शास्त्रों में यही बात बताई गई है कि हमारा कुछ नहीं है, जो भी कुछ है वो भगवान का है। भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्म करिष्यामि। अर्थात मैं भगवान का हूं, यह बात तो ठीक है, मगर जो बल है, जो वीर्य है, जो तेज है, वो सब कुछ भगवान का है। मेरा कुछ नहीं है, मैं भी भगवान का हूं। यह भावना विदुर जी के जीवन में हमें चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है। महात्मा विदुर जी की भक्ति के श्रृंगार में अन्य भी गुण हमें दिखाई देते हैं। उनके भीतर जो सद्गुण है, अहिंसा, आसक्ति का त्याग, स्थित प्रज्ञता, योग युक्तता और भगवत परायणता, यह विदुर जी की भक्ति के श्रृंगार है। विदुर जी, उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई अन्य एक विशेष बात है, हम सब विदुर जी को जानते हैं उनके नीति विषयक सूत्रों से। विदुर जी की पहचान ही विदुर नीति से होती है। हमारे यहाँ भारतवर्ष में कई नीति प्रसिद्ध है, बृहस्पति नीति, भीष्म नीति, चाणक्य नीति। उन सभी नीतियों में विदुर नीति श्रेष्ठ है। सभी शास्त्र श्रेष्ठ है, मगर विदुर नीति सबसे श्रेष्ठ है। और यह विदुर नीति, उसमें जो नीति सूत्र बताए गए हैं, भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर में पधारे हैं तब भी विदुर जी ने अपने नीति विषयक वाक्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति कहे हैं। विदुर जी ने भगवान द्वारिकाधीश से कहा है, प्रभु, जहां अच्छी और बुरी बातों का एक
शाही परिणाम हो, वहां विद्वान पुरुषों को कुछ नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां बहरे और गूंगे बैठे हो, वहां पर राग आलाप करने से कोई निष्कर्ष नहीं मिलता है। हमारा बोला हुआ हर एक शब्द व्यर्थ जाता है। ऐसे नीति विषयक वाक्य विदुर जी ने अपने विदुर नीति के माध्यम से उद्योग पर्व में 8 अध्यायों में विदुर नीति बताई गई है महाभारत में, जो धृतराष्ट्र के प्रति उन्होंने कही है, 8 अध्यायों में बताई गई है। और इसी बात को स्वामी नारायण भगवान ने शिक्षापत्री में भी बताया। स्वामी नारायण भगवान ने शिक्षापत्री में जो 8 शास्त्र बताए हैं, उनमें से एक है विदुर नीति। भगवान स्वामी नारायण ने श्रीमद् सत्संगी जीवन में अपने भक्त को आज्ञा दी है कि आप सभी विदुर नीति में बताए गए विदुर जी के जो नीति सूत्र है, उसको भली भांति अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करें। जिसने विदुर नीति के वाक्य को अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास किया है, वह सदैव सुखी हुए हैं। और इसीलिए विदुर जी की भक्ति और विदुर जी के जो नीति सूत्र है, वो हमारे जीवन को भली भांति श्रृंगारित करते हैं, हमारे जीवन को श्रृंगारित करते हैं, हमारे जीवन को धन्य करते हैं, पावन करते हैं। ऐसे महात्मा विदुर जी के श्री चरणों में शत शत वंदन करते हुए सारस्वत शस्त्र के माध्यम से एक लंबे अंतराल के बाद पूज्य मां के आशीर्वाद के माध्यम से आज फिर पूज्य मां और आप सब विद्वत जनों के बीच उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। पूज्य मां उनके चरणों में भी वंदन करते हुए आप सभी विद्वत जनों को भी वंदन करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं। अस्तु। जय स्वामी। श्री सद्गुरु सारस्वत समारोह में पिछले कई वर्षों से हमारे गुरु ग्रंथ और गोविंद के कृपा पात्र सभी विद्वज्जन, सभी मननशील प्रवक्ता कृपा पूर्वक अपने समय का भी दान करते हैं और साथ साथ अपने वचनामृत के रूप में महादान करते हैं। प्रत्येक श्रावण में कभी 5 दिन, कभी 7 दिन, कभी 9 दिन और 30-30 दिन तक सब साथ रहे और वचनामृत का आनंद लिया और दिया। इस वर्ष जब बाहर नहीं जाना है, लेकिन हमने सोचा कि वैसे भी परमात्मा कहाँ बाहर का विषय है। जब इस महामारी में किसी को बाहर नहीं जाना, हाँ, बाहर जाने पर प्रतिबंध हो सकता है। समाज की परिस्थिति को देखते हुए हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हमने सोचा कि हम भीतर तो जितना चाहे उतना जा सकते हैं। भीतर जाने से तो कभी कोई नहीं रोकेगा, भीतर जाने पर कभी प्रतिबंध नहीं लगेगा। और परमात्मा वो तो भीतर का ही विषय है, बाहर का तो है नहीं। और इसलिए बाहर जा करके मंच पर मिल करके सारस्वत का जो आनंद लेते हैं हम प्रतिवर्ष, अगर हम प्रयास करें तो इससे भी कई गुना आनंद हम इस वर्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इसके लिए हमें बाहर तो किसी को जाना नहीं है, हमें भीतर झांकना है, हमें भीतर जाना है, अपने भीतर जाना है, ग्रंथ के भीतर जाना है। वैसे भी
संतों ने कहा है, कबीर साहब का भजन है कि घर में योग भोग घर में ही, घर तजी बन नहीं जावे। अवधू भूले को जो घर की ओर, जो भटके हुए को घर में भेजता है, तो घर में सब चीज है, घट में सब चीज है। तो ये समय बाहर जाने का समय नहीं है, लेकिन बिल्कुल भीतर जाने का समय है। और जितना हम भीतर जाएंगे, सारस्वत का आनंद तो उतना अधिक आएगा, क्योंकि रस की दिशा में जा रहे हैं हम लोग। तो उसी प्रकार परमात्मा खुली आंखों से उतना नहीं दिखता जितना परमात्मा बंद आंखों से दिखता है। तभी तो जब हम मंदिर जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, कोई पूछेंगे क्यों जा रहे, तो कहेंगे दर्शन के लिए। लेकिन जैसे ही मंदिर जाएंगे, भगवान के सामने खड़े रहते, तो जाते ही आंखें बंद कर देते। कोई कहेंगे दर्शन के लिए गए तो आंखें बंद क्यों कर दी? हम तो दर्शन के लिए जाते हैं, आंखें बंद कर देते, क्योंकि हम सब मानते हैं कि खुली आंखों से परमात्मा नहीं दिखता, और इसके लिए हमें बाहर की आंखें बंद ही करनी पड़ती है। इसलिए तो कहा, बाहर के पट बंद कर और अंतर के पट खोल, भीतर का पट खोलना पड़ता है। और आज के हमारे प्रवक्ता पूज्य श्री कृणाल भाई जोशी, जो अहमदाबाद से है, जो निरंतर बाहर के पट बंद रख करके भीतरी पट को खोला है उन्होंने, और अपनी भीतरी आंखों से पूरे भुवन को देखते हुए, स्वयं प्रज्ञा चक्षु होते हुए भी कृणाल भाई ने इस वर्ष के अपने प्रवचन के माध्यम से हम सबको केवल भुवन का नहीं, बल्कि भुवन को प्रकट करने वाली मां भुवनेश्वरी का दर्शन कराया है। देवी भागवत में जगदम्बा का जो वर्णन है, भुवनेश्वरी के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश मणिद्वीप में जाते हैं और मां का दर्शन होता है। वो जो भुवनेश्वरी का रूप है, इतना अद्भुत तरीके से आपने मां भुवनेश्वरी का दर्शन कराया अपने शब्दों में। और जैसे जैसे भुवनेश्वरी का हम दर्शन करते जाते हैं, स्वाभाविक है वैसे 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 हमारी दृष्टि बाह्य जगत से हटती जाती है, क्योंकि वो तो अनंत है, पूर्ण रूप से न तो कोई देख पाता है, न तो कोई समझ पाता है। रामकृष्ण परमहंस जी दिन रात मां की उपासना करते थे, और जब कभी कुछ लोगों ने उनको पूछा कि आप हमको तो बताइए, आप हमको क्यों नहीं बताते? हम तो देख रहे हैं कि ये महाकाली है, विकराल रूप है, जबान बाहर है, और आप कह रहे हैं अद्भुत अद्भुत अद्भुत। हमको भी तो बताइए कि आखिर मां का रूप क्या है, वो कैसी है? तो परमहंस जी कहते थे बैठो बैठो बताता। लेकिन जब लोग बैठ जाते थे तो वो बोल नहीं पाते थे और कहते थे आज नहीं, फिर कभी। ऐसा बहुत बार हुआ। फिर लोगों ने कहा कि आप तो कभी नहीं बताते। तो परमहंस जी कहते थे मैं बताने के लिए ही बुलाता हूं,
इसलिए बैठने को कहता हूं, लेकिन जब मैं कोशिश करती हूं, जब मैं प्रयास करता हूं, तो शायद वो मुझे बोलने नहीं देती। शब्दों के आगे भाव आ जाता है, क्योंकि शब्द सीमित है और वो तो अनंत है। और उस अनंत का, भुवनेश्वरी का, जो स्वयं भुवन बनाती है, जो स्वयं भुवन बनी हुई है, ऐसी महामाया का आपने साक्षात्कार कराया, दर्शन कराया, शाब्दिक दर्शन कराया। इसके लिए आपको नमन। और आज के हमारे दूसरे प्रवक्ता पूज्य श्री के.पी. स्वामी जी, जो कि वो भी सारस्वत के आरंभ के पहले से आश्रम से जुड़े हुए हैं। आश्रम के साथ संपर्क केवल के.पी. स्वामी जी का नहीं, उनके पहले से उनके गुरुदेव पूज्य श्री गोविंद स्वामी जी का भी बहुत आत्मीय संबंध रहा है। जब जब कथा हुई द्वारिका में, कम से कम 3 कथा उन्होंने स्वयं लगातार मंच पर विराजमान होकर के श्रवण की, क्योंकि कथा रस से एक उनका एक प्यास उनकी बनी रहती है, सत्संग से, कथा से। और उन्हीं की प्रेरणा से पूज्य श्री के.पी. स्वामी जी और उनके गुरु भाई सी.पी. स्वामी जी दोनों ही शुरुआत से ही इस प्रकार सारस्वत के आयोजन से लगे रहते हैं। वो आयोजन में भी होते हैं, सेवा में भी होते हैं, व्यवस्था में भी होते हैं। और जब वक्तव्य के लिए उनको कहा जाए, तब उतने ही आनंद से वो अपना वक्तव्य भी प्रदान करते हैं। पहले सारस्वत से, सारस्वत जब 7 दिन का हो, 8 दिन का हो, तो 1 दिन पहले आ जाना और पूरा सारस्वत संपन्न करने के बाद यहाँ से विदा लेना, और सारस्वत के दौरान निरंतर किसी न किसी सेवा में जुड़े रहना। इस प्रकार बिल्कुल अपना मान करके इस स्थान को और इस आयोजन को शुरू से ही आप इस आयोजन से जुड़े हैं। और प्रतिवर्ष आपने भी एक से बढ़कर एक अलग अलग प्रकरण पर अपने विचार रखे हैं। इस वर्ष विदुर जी की नीति और प्रीति, इस विषय पर आपने अद्भुत सूत्रात्मक व्याख्या की, क्योंकि परमात्मा की प्रसन्नता के लिए ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, नीति और प्रीति। ये दोनों का होना जरूरी है। लोक व्यवहार में नीति हो, लोगों के साथ हम नीतियुक्त व्यवहार करें और इष्ट के प्रति प्रीति हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ये दोनों बात रखी है। सत्संग का अधिकार किसको? कथा के अधिकारी कौन है? कथा मिलती तो बहुतों को है, लेकिन बैठती कहाँ है? इसे गुजराती भाषा में तो कहते कथा बैठी है। वहां पर जब कथा हो रही है तो कथा बैठी है, उस गांव में कथा बैठी है, तो ये बैठी बोलने का भी यहाँ पर एक परंपरा है। कथा बैठी, बहुत बड़ी बात है वो बैठ। कथा बह जाती है, बह जाती है, लेकिन धन्य है वो जिसमें बैठ जाए। लेकिन कब बैठती है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने
इसके अधिकारी बताए हैं। गुरु पद प्रीति नीति रत जेहि। हाँ, प्रेम परमात्मा से होना चाहिए, लेकिन जिस ईश्वर को हमने इन आंखों से देखा नहीं है, उससे हमारा अधिक प्रेम भी नहीं बनता और उससे हमको अधिक भय भी नहीं होता। लोग मंदिर में भी चोरी कर लेते हैं तो अधिक भय भी नहीं होता, क्योंकि आंख से नहीं देखा। और उससे हमारा अधिक प्रेम नहीं होता, क्योंकि हमने आंख से नहीं देखा। और ऐसे में हमारे लिए प्रीति का स्थान है गुरु के चरण, गुरु के वचन। उनके प्रति हमारा प्रेम भी होता है और गुरु का एक भय भी बना रहता है, जो भय कल्याणकारी है हमारे लिए। तो समाज के साथ लोक व्यवहार में नीति हो और परमात्मा के सौम्य स्वरूप में जब हमारी प्रीति हो, गुरु चरण में, गुरु वचन में, तो फिर हम अधिकारी बन जाते हैं। और ऐसे अधिकारी में कथा बहती नहीं है, ऐसे अधिकारियों में कथा बैठ जाती है, स्थापित हो जाती है, क्योंकि वो अधिकारी है। तो ऐसी अद्भुत व्याख्या विदुर जी की नीति और विदुर जी की कृष्ण प्रीति आपने हम सबको बताई। इसके लिए वंदन। जय हिंद।